जिन सच्चा पातशाह सिरसा दसा हो, जिस पास बैठे हैं सोहिए सबना दा भेषा हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सर्वत्र माई पाई महापुरुषों के सालाना जोड़ मेले की याद विच इस स्थान से गुरु महाराज जी की हजूरी विखे जुड़ के गुरु महाराज जी की जो गुरु महाराज जी का महावाक श्रवण किया है। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में सो गीत है सुगा। गुरु महाराज जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी स्वरूप निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप वे महावाक है, गुरबाणी है। निरोल शुद्ध कोई विशेष व्यक्ति भी गल बात करे या वाक बोले उस भाव होया करते है, मतलब हुंदा है। आप कह दो, मतलब कह दो, अर्थ कह दो, सिद्धांत कह दो। आम संसारिक जीव रजो तमो सतो गुणी और पंच तत्व विद्या जन इन्होंने रचे हुए तिने शरीर सूक्ष्म स्थूल कारण ये सब सापादिक हैं।
और मलिन उपाधि है। शुद्ध माया दे भी रचत नहीं हैं, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਪੂਜਨ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ब्रह्मा विष्णु शिव जी ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। शिव जी विष्णु गणेश सूरज ते देवी देवी दे भी बहुत लोग पुजारी हैं। सूरज देवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, शिव जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अब ये सारे जितने भी देवी देवते ये उपाधियाँ सहित हैं। उपाधि कोई ऐसी लाग एक स्थूल विचार अनुसार अपनी बोली अनुसार भी कोई ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕਠਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ वो कहते जो वस्तु जितने देश में आप स्थित होवे
उतने देश में स्थित वस्तु को अपने से भिन्न करके जनावे, ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ वेदांत शास्त्र है उसका लक्षण है। इस विचार विच ना पईए। एक मोटा जिहा समझण वास्ते स्थूल शब्दां दे विच ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ हर एक ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਸਭ ਦੀ ਮੂਲ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ चिमड़ी होने करके, लगी होने करके या लाग होने करके जिहदे विच ही ये सारिया चीज़ां ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजो, तमो, सतो और जिन्नी भी होर आसरी संपत्ति है ये सब स्थूल मोटी उपाधि है। ये भी देवते देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ भी लगी हुई है। रजो तमो सतो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ व्याप रही है सब तरह करके। इस करके वो शुद्ध नहीं ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਗੰਧ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गंदी चीज़ भी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे वासना भी आऊगी वो माड़ी आऊगी। ऐसे ये तो एक दृष्टांत है कपड़े ਦਾ समझण वास्ते। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕ ਇੰਦਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਇੰਦਰੀਏ एक कर्म रूप करके है कम करती है, वो ज्ञान करती है। इस करके इनू कर्म इंद्रिय च गिणिया जाता है। वो रस लेंदी है, रस एक गुण उसका ज्ञान करती है। इस करके उन्होंने ज्ञान इंद्रिय च गिणिया जाता है।
ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਰਜੋਗੁਣ ਜਿਹੜੀ जो सूक्ष्म तो सूक्ष्म, जैसे सतगुरु महाराज जी वाक आत्म जिणै सगल वस्तां कै जाका सतगुरु पूरा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਜੋ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसे ही मन दे अंदर भी है। ये तो मोटी जी गल है भी बाहरलियां चीज़ां की समझ जिहड़ी है ज्ञान कह दिओ, वो सानू किवें हुंदा है? हुंदा सारिआं नूं है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਣੂਗੀ, ਉਦਾਨ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਕੰਠ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਵਾਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਧੁਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮ ਦਾ। ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਢੰਗ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝਣੀ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਧੁਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
हौमै सहित अपने आप नूं समझदा है, ज्ञान है, उसनूं चेतन चेतन कहो, ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, कोई गल नहीं। जिहड़ा अपने आप नूं हौमै दे सहित समझदा है ना भी मैं हाँ, वो तो जीवात्मा है। जे इस दे विचों हौमै निकल जाए या अविद्या दूर हो जाए तो फिर ਉਹਨੂੰ शुद्ध आत्मा कह ਦਿੰਦੇ है। ਉਹਦੇ नाम ਵੱਖਰੇ रखे है, साक्षी आत्मा भी रखे है, इसी तरह ही मुख आत्मा भी उसका नाम है। तो इस दे मुकाबले ते गौण आत्मा है, मिथ्या आत्मा है। ये भेद हैं। हुण सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ शुद्ध ये माया परमेश्वर दी है। सब उसने अपनी इच्छा अनुसार ये सृष्टि रची है तो ਉਹਦੇ हैगी अधीन। इको एक वो शुद्ध स्वरूप है। और जिन्ने भी देवी देवते या माया रचित रचना है, ये सब मलिन है। उन्होंने जिन्ने भी हैगे संसार वो उपाधि के समेत ने परमेश्वर दे बनाए हुए है। जे अवतार बनाए तो उसने बनाए है, पीर पैगंबर बनाए है तो उसने बनाए है। वो सब माया उपाधि समेत हैं, शुद्ध नहीं है। बल्कि इत्थे आके भी उन्होंने कोई संगत करन तो या होर इधर उधर कोई गुरु ऐसा ਉਹਦੇ मेल तो फिर उन्होंने विचार या ज्ञान ऐसे भाव हुए। इस करके उन्होंने बाणी भी जिहड़ी है वो नहीं है, निरुपाधिक नहीं है, उपाधि सहित है। वाहिगुरु परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, उपाधि तो रहित है, उसकी ये गुरबाणी है। इस करके केवल ही केवल इको ही जो सानू गुरबाणी दे जे अखरां दे विच दर्शन करने होण तां बन अखर अखरां अखर लिखे जाणगे फिर ही है ਉਹਦਾ। जे अखां नाल भी अखरां दे दर्शन होणगे, ਉਹਦੇ ਦੇ नेत्र होणगे, वो कर सकदा है। दूसरा एक तो नेत्रां दे नाल ये दर्शन हो गए, रूप रंग वाली चीज़ दे होणगे। दूसरे सरवण दर्शन भी है। कन्ना द्वारा सुन के, जिस तरह शास्त्र द्वारा या साध संगत द्वारा सुन के भी हाँ भी रब हैगा, या रहिंदा किथे है वो आपो अपने विचार है। कोई कहता भी वो बैकुंठ दे विच रहिंदा है, दूसरे कहते 7 लोगों दे विच रहिंदा है, किसी ने किते मन्निया है, किसी ने किते मन्निया है। चलो किते भी कोई बने, चाहे कोई व्यापक बने, चाहे विशेष रूप दे विच बने, चाहे इको ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर इस रूप दे विच बने, वो जिस वेले जिहदे नेत्र है नहीं, कन ठीक है, शक्ति ठीक है, वो सुन के भी हाँ भाई यह जिहा रब है, उस दे विच गुण हैं, इस तरह की गल्लां बातां है। या कोई चीज़ है जिहड़ी
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਵਕਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਧੁਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਕਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਰਥ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਯੰਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਾਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਮਾਇਆ ਹੈ,
माया के अगे कार्य रूप होने करके, क्योंकि माता पिता तो अगे संतान होने करके उन्होंने पुत्र कह देंगे। ऐसे ही पंचभूत जने एक माए। और माया कोई यही जी थोड़ा चीज़ है भी जिमें साढ़े माँ प्यो के शरीर ने या अगे असी माँ प्यो बन जाते हैं तो वो गलबात है। वो तो जो माया वखरी मन के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर परमेश्वर की जी शक्ति है, जो कई कहते सीधे ही कहो शक्ति है, उसे ने बनाते काम क्रोध लोभ मोह हंकार। वो कारण रूप कार्य रूप उपाधि हो गई। ये लाग लगने करके इसनू जिमें कोई गारे नाल लिबड़िया होवे, एक साफ होवे या किसी गंदगी नाल मलीनताई नाल, इस तरह ही अशुद्ध बोध दे नाल साडा हिरदा जिहड़ा है वो लिबड़िया है। अशुद्ध बोध, अज्ञान कहो, माया कहो, अविद्या कहो, उसे करके ही मुक्ति की गल भी संत कहते मुक्ति मुक्त होंदे आप ते दूजियां नूं भी मुक्ति का मार्ग दसदे है। परमेश्वर मुक्त कर दिंदा है, राम जो दाता मुक्त का। इन्हां दे जिहड़े हैगे ये चिमड़े हुए है, हर वेले लगे हुए है, प्रतिबंधक है, यही उपाधि है। फिर हौमे है, इसकी अगे इस एक एक दे अगे बड़े परिवार ने या बड़िया एक जरनैल ने, बड़िया इन्हां फौजां, पर वो सूक्ष्म रूप दे विच वरत रही ने। जदों सूक्ष्म रूप करके हृदय दे विच ही वरदियां ने, जदों साड़ी प्रारब्ध अनुसार वो स्थूल शरीर दे नाल उन्हां दा संबंध हुंदा है, ते फिर ही स्थूल शरीर दी जिहड़ी प्रवृत्ति है, झगड़े है, रौले है, लोभ की प्रवृत्ति है, चीज़ां च खाण पीण वाली चीज़ां च, जोड़न वाली चीज़ां च, धन दे विच होना है, ऐसे ही मोह है, मोह की प्रवृत्ति है, क्रोध की प्रवृत्ति है। जिथे कोई उसके प्रतिकूल वस्तु है तो जिसनों अनुकूल उन्होंने चंगी चीज़ लगती है, जदों ਉਹਦੇ ते कोई हमला करता भी इनू खोआ खिंजा या होर चीज़ है, उस वेले फिर क्रोध जागदा है। क्रोध के अंदर ईर्षा है, द्वेष है, फिर तृष्णा है, आशा रजोगुण के अंदर है। आशा मनसा बंधनी भाई, कर्म धर्म बंधकारी। जगते रहे निराशा, यदि आशा न उपजे तो मनसा है वासना, ये है वाहिगुरु परमेश्वर का एक पक्ष बनाया हुआ है। ऐसी रचना का आसरी संपत्ति का अगे स्थूल शरीर नाल संबंध है। सानू तो उदों ही मनां दे विच, हृदयां दे विच ये जिवें भी रहन साडा सृष्टि जिहड़ी स्थूल रचना इहदा नुकसान तो उदों ही हुंदा जदों स्थूल शरीर नाल संबंध हो के ते अगे ये काम करदियां नुकसान पहुँचाते हैं।
ईर्खा बखीली जी हो, तृष्णा बढ़ गई जी, लड़ाई झगड़े हो सारे अगे तो अगे, ये सारा जिहड़ा इन्हां तो रहत होवे छुटिया होवे ते है बड़े मुश्किल है। काम क्रोध लोभ मोह हुंकार, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा ढाले। क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, बहुत सहज कीर्ति बाणी दे अंदर सतगुरु अर्जन साहिब जी ने उपदेश दिंदिया होया एक एक का जिक्र किया है, वो थां थां ते बहुत आउंदा है। उसे विस्तार दे नाल इन्हां दे शब्द उच्चारण कीते है। जैसे अजित सूर संग्राम अत बलना बम मर्दने गन गन धर्व देव मानुष्य पस पंखी बमोहने हर कर्ण हारंग नमस्कार शरण पुरख चित है। ये मोह नहीं मिटना ते धन है ओनू करन वाला ओनू मत्था टेकिया, नमस्कार करो। वो कौन है? अचल स्वरूप है वाहिगुरु परमेश्वर, ओदी शरण लै छटांगे, हो नहीं छुट सकते। यही संत एक काम पहला इसदे वो नहीं होगा, शरीर दे विच है, स्थूल रूप दे विच ही है। बहुत कहते हजारां हजारां साडे शरीर दे विच जो ब्रह्मचर्य का एक कतरा भी है, ਉਹਦੇ ਚ हजारां ही कीटाणु ने इस स्थूल शरीर की रचना वर्गे। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ बल किन्ना है। कोई इनू नहीं, ना देवी देवता कोई भी समर्थ अपने आप नहीं है, क्योंकि जिसकी रचना रची हुई है उससे ये अधीन हैं। जे कोई गुरु है संसार में भी एक गुरु है, या कोई साधु है, या कोई ब्रह्म ज्ञानी है, या कोई संत है, जिन्हों का उसने वाहिगुरु परमेश्वर ने कृपा करके वो बल बख्श दिता है, उन्होंने नहीं है संतों ने। काम क्रोध इन्हां अगे तृष्णा ते लोभ लहर ते हंकार ते मोह, ये चित नूं तपाउंदे है। संत का एक मोटा जिहा अर्थ करते हैं, जिहदा हृदय शांत होवे। शांत ना बनूगा, ये शांत ससा कन्ना ला के ते तत्ता ला रहे हो, साथ हो गया। कई समय विच साथ ही बोलते सी, फिर उन्होंने शांत कहन लग पे। ते प्रसंग अनुसार अर्थां का भेद हो जाता है। शांत शन शांति शांत तो साथ होगा, एक अंगां का भी साथा हुंदा है, एक साथ सतस्वरूप का भी आउंदा जिक्र। और वो कहते जिहदे ताईं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसके हृदय नूं ना तपाउण, जैसे दुख रोग संताप उतरे। संताप संग भली प्रकार है, चीज नूं तपा देना। जिस तरह अग दे विच चीज रखो तो माड़ी मोटी तो साड़ ही दिंदी है, लकड़ां नूं साड़ दिंदी है, लोहे नूं गर्म कर दिंदी है, तपा दिंदी है, लाल सुर्ख कर दिंदी है। अगे अग्नि दे विच इन्नी शक्ति भी है भी जिहड़ियां धातुआं या होर चीज़ां ने उन्हां नूं स्वाह भी कर सकती है, पता ही नहीं रहूगा भी लोहे लाहे या सब।
हवा बन जाएंगे, रहूगा नहीं कुछ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੰਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਧ ਬਣਦੇ, ਸੰਤ ਬਣਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਦਿ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰਤ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਨ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਦ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਾਦ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। जैसे गुरबाणी दे महावाक होंदे, शब्द होंदे जी, चौपदे, पंच पदे, दो पदे, वो पाद हन, वो गुरबाणी दे चरण है। ये जे तो नहीं है, ये साढ़े स्थूल शरीर दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ
कि स्थूल शरीर तो साधुआं दे भी अवतारां दे भी सारे दे ही नाशवंत है, स्वाह हो जाते हैं। रब भी नाल ही स्वाह हो गया। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, इस करके यह जिहा रूप नहीं होना है। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ शरीर है ਜਾਂ अवतारां ਦੇ शरीर है, वो यह जिहा नहीं होगा। ਉਹਦਾ कुछ रूप रंग होर ही होगा। जिस तरह धरती है, पानी है, इनू अग ते पानी नू साड़ो, भाप बन जाती है। धरती दी चीज़ां भी सड़ के स्वाह हो जांदियां है। ये सारिया चीज़ां ते वो तो अगे हवा है, हवा तो अगे आकाश है, वो अग नाल सड़दे ही नहीं। हवा का की सड़ लोगे, आकाश का की सड़ जो। यह जे रब, हाँ भाई कोई होगा तो सही, यह जी होगा जिहड़ा नहीं सड़दा। इस करके पहला ये जिहड़ा ऐसा विवेक विचार है, इहदी भी संगत दे विचों ही समझ आउंदी है। कई गल विद्वान भी जैसी शक्ति वो नहीं फुरदी, वो आप परमेश्वर जब किसी को फुरा दिंदा वो चीज़ है। वो फिर अज जदों मैं संगत दे विच आया, तुहाडे दर्शन कीते, उदों ही मैनूं गल फुराई भी इहदा आ उत्तर ठीक है। जिहदे विच सारा कुछ ही जिहड़े रब दे लक्षण शुद्ध हो जाण, और कोई भी उहदे ते सद लक्षण होण, उहदे च दोष ना, वो फिर गल फुरी कि साध संगत दे विच वो वाहिगुरू परमेश्वर बोध स्वरूप हो के वसदा है। बुद्धि दे अंदर बोध है। बुद्धि मन चित ये हृदय दी शाखा ने, इस दे विच कोई भी किसी तरह का दोष नहीं होगा। उहदे संबंध करके सो भाई जिहड़े गुरमुख ने, इसे करके गुरु महाराज ने बहुता हिरदे का जिक्र किया है, मन का जिक्र किया है। मन या बुद्ध या जिहड़ियां सूक्ष्म चीज़ां साडे अंदर रहिंदियां है, ये भी साड़ियां भी नहीं सड़दियां। पानी दे विच भी जे कोई डुब जावे, ये नहीं गलदियां। ना मन, ना बुद्ध, ना चित, ना हम ही उत्थे गड़ूगा, ना अज्ञान ही गड़ूगा। परले भी आ जाए, आकाश भी न रहे, फिर भी नहीं, ना तो छुटकारा हो सकता। ये ऐसियां वस्तुआं बनाई हुई ने, चीज़ां कह लो, वस्तुआं बना दो, और दिसन विच नहीं आउंदियां ते सुनिया निर्णा होंदिया होया इन्हां दी समझ आउंदी है। वो जिहड़ी समझ है उहनूं विद्वान कहंदे अनभव। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी इस शब्द की वरतों की है, वाहिगुरू वल्ली अचल मूर्त अनभव प्रकाश। वो वाहिगुरू परमेश्वर साडे विच अनभव प्रकाश स्वरूप हो के सारियां दे विच ही वसदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी भेद है, रजो तमो सतो जड़ चीज़ां दे वखो वखरे भेदां करके मनुखा दे दा जिहड़ा हृदा है, इस दे अंदर होर चीज़ां नालों समझ विशेष है। बोध कहो इस करके भाई इउं वसदा है। अगे जे ਉਹਦੇ ते किसी का प्रश्न होए फिर अगे वेखी जू। इस तरह वो बोध स्वरूप होकर वाहिगुरू परमेश्वर बस रहा है।
और निर्लेप है। ये चीज़ां तो छुटकारा मन बुद्ध चित्त दे अंदर ही काम क्रोध लोभ मोह हुंकार बसदे है। आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी, सच्ची ते झूठी ये तो आम सधारण जी पद हैं, पर इत्थे नहीं वो सच्ची ते झूठी है तो अखीर ते जाके, पर इत्थे सच्ची जो सच स्वरूप है वो जड़ी बिहारी दीर्घ रूप मात्रा करके सच स्वरूप दी वाणी तगावो गुरु के। होर ना लटाए ये अधिकार फेर तुरतों ही आके जिन्हें देवी देवते पैगंबर या होर चीज़ होए या उन्होंने किसी को कहते कुरान शरीफ जी फरिश्तियां द्वारा आया तो जिहड़ी बोध होया इन्हों कोई ऋषि महात्मा दिताए उस उपदेश के नाल होया, उन्होंने अंदर फेर हौमे आ गई। जैसे वेदां का जिक्र वेद कोई देता हो भाई वेद तो एक धुनी रूप बाणी उत्थे तो कागज है नहीं ते ना अखर ने। वो जो संखासर दैन सी कहते वो वेद अखे चुक के लै गया, वो वेद नहीं कहते ब्रह्मा नूं एक संख ही परमेश्वर ने दिता सी। उस दे विचों जिहड़ी वेद बाणी है, वेद नाम ज्ञान वाली विचार वाली बाणी है, उहदे विचों आप ही धुनी निकलती सी, आवाज आउंदी सी। इनू हंकार हो गया भाई मैं बड़ा विद्वान है, मेरे को वेद ने कोई ज्ञान जिवें ज्ञानी नूं ज्ञान कोल होवे तो ज्ञान का हंकार हो जाए, असली ज्ञानी नहीं हुंदा जिन्हों हंकार हो जाए, ते असली संत भी नहीं हुंदा जिन्हों हंकार हो जाए, चाहे काम क्रोध लोभ मोह हंकार की लपेट दे विच है। उदो जैसे गुरु नानक साहिब जी ने कहा भाई बच्चे सिंह अपने साधु सिंह पुरानी जी जन्म साखी रखी, मैं तो पढ़ी नहीं सी, मैं चल की पढ़नी है, कुछ वो राह मिला भी है, वो पढ़ता जाए। वो कहना भी अज अखे आ गल आई है, सीधा नहीं गल आई ने, कहना भी गुरु नानक साहब बैठे है, भाई बाला भी बैठा, मरदाना भी बैठा है, तो की कहते जी तुसी कौन हो? आखे नानक निरंकार। मरदाने का निष्कपट ते सहज सुभाव ही सी, ते गुरु नानक साहब सामने बैठे मरदाना कोल नेड़े जा करके कहना महाराज तू ही निरंकार है, निरंकार है? महाराज कहते मरदाने मैं निरंकार नहीं, मैं निरंकार का भेजिया हुआ है। मैं बड़ी मरदाने ने भी सीधी गल ही कह दी भी तुसीं तुहानूं निरंकार जिवें कोई किसी नूं संत कहण लग पो या अवतार कहण लग पो या दूजे प्रापे गंडा करने कहन कहावन ने कीर्त कर ला मान अपमान बंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संत कोई कोट बड़ा है। सो सारा संत पुणा, सारा साध पुणा, सारा गुरु पुणा गुरु की है जिहड़ा ज्ञान का उपदेश देवे, समझ आत्मा परमात्मा की समझ या सिक्ख्या ओदी होवे, वो सब कुछ परमेश्वर ही। जे किसी गुरु का इस स्थूल शरीर दे विच आपां उहदा शरीर बनाया या मन बुद्ध भी पहला बनाए, परमेश्वर ने बनाए ने, उहदे ज्ञान भी उसे ने भी दिता है। उसनों जदों भुल गया, चाहे संत है चाहे कोई गुरु बनया होया है चाहे अवतार है, ये तो उसकी चीज़ है, वो हौमे दे विच भुलूगा तो वो ना संत है ना गुरु है ना दास है ना कुछ है। तो गुरु महाराज ने यही शिक्षा दी है
और बिल्कुल वरता के अपने ते घटा के दस दी है। जे गुरु नानक साहब ने कहा भी सब सृष्टि दे विच रब है, सेवा करनी चाहिए है, तो दिल्ली दे विच वेख लो नानक प्याव गुरुद्वारा, उत्थे स्थूल विचार अनुसार भी वो सेवा करके दिखा देती है। पानी पियाई जाओ, ये दुनिया सेव कमाई है, तो फिर जे दास तो फिर दास ही है। बल्कि इथों तक फिर रब का इन्ना सत्कार और इन्नी श्रद्धा और इन्ना महात्मा और इन्नी महिमा गुरु नानक साहिब जी ने सिर्फ सलागा भगती प्रगट की है भी जेडे रब दे दास ने उन्होंने भी असी दास हाँ तो बन के दिखा दिता है। रब का भी ये सुभाव है। जिवें सूरदास की साखी आती है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। देखो पहला की उहदा सुभाव ते बिरती सी, फिर वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा एक ही सिक्ख्या उसके मन दे विच काट कर गई, तो ज्यों रब दे प्राण हो के बैठा ते साध बन गया, खुदा दास बन गया। पहला कुसंगी सी, माया का दास सी, जो कुसंगत सीगी, ये रूप वेख के ये जड़ा है ना अंदर परबल काम, उन्होंने दशा ऐसी कर दी। ते जदों ये हो गई तो उस तो उल्ट वस्तु विचार ते परमेश्वर दे नाल जिहड़ी जोड़न वाली चीज़ है उसकी याद है, उसका सिमरन है, उसका नाम है, उसकी बाणी है, उसकी सिफत सलागा है, उसका गुणानवाद है। जदों उसके नाल मन की सुरत बिरती जुड़ी ते शरीर से भी उसका प्रभाव पिया, ते बिल्कुल प्रवान उधर ते ओ हो गया, कोई प्रारब्ध अनुसार ढिला हो गया शरीर। फिर रब आप आया दास बन के ओदी सेवा च लग्या। एक तो जनाउंदे हुंदे दसिया भी नहीं है, फिर रब का यह सुभाव भी हैगा, ये होना बड़ा मुश्किल है। फिर दासां दा दास भी हो के फिर ओदी सेवा करनी हो, तो सारी सृष्टि के हर एक एक क्षण दे विच वो साडी सेवा कर रहे हैं, सब दी सेवा कर रहे हैं। किसी को किवें भी ये सेवा कर रहे हैं, सारा शरीर उसने बनाया है, अंदर स्थूल शरीर के अंदर फेफड़े है, दिल है। जो कोई दिल खून नाल चलता है, बाहर चीज़ां उस तरह नहीं बनाती, अंदर मशीना बनाती भी खून बनी जाए। किसी ने किसी एक बोतल किसी ने कहो खून की दे दो, कितना मुल लेंदा है। वो वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू मशीना ही दे दित्तियां, हर वेले खून बनता ही रहे और सानू फिक्र नहीं बनाउण दी, ते सानू उसका संचार करन दी भी फिक्र नहीं है। दिल बनाते आपे सब ऑटोमैटिकली दाद नहीं चली जाती। फिर प्राणा दे नाल ऐसी क्रिया हर वेले, प्राण देख लो बहुत ऑक्सीजन वायु, प्राण वायु कहो, इन्नी कीमती रखी है जे एक मिनट भी सानू ना प्राप्त होवे बाहरली ऑक्सीजन ते घबरा जाने है कोई मुल उसका। ते निर्यतन नहीं, असी नहीं यतन करते। और मैंने की यतन करना है, वो अपने आप हवा आउंदी, बाहरली गंदी निकलती, अंदरली निकलती, दूजी आउंदी, और सारी क्रिया जिहड़ी हवा ही करा रही है। तो उसके हुक्म दे विच इस करके एक एक क्षण दे विच वेख लो जिहड़ी नेत्र है, इन्हां दे विच एक पानी रखिया है, और हर वेले इन्हों तर रखने के वास्ते पलकां बनाई है। पलकां जड़ियां मिचदियां खुलदियां इन्हों तर रखदियां, नहीं तो आकड़ जाने। फिर गर्दे तो होर चीज़ों तो भी ये बचाउंदियां ने। ते उहा जिहा वाहिगुरू परमेश्वर ने भी सुंदर भी होवे, उहदे च गुण भी होण, ते पलकां दे उत्ते चिमड़ियां भी ला दित्तियां।
पर पता नहीं अजकल कलयुग का मनुख होंदा ही मनुख है। तो वाहिगुरु परमेश्वर ने तो सारिया दातां दित्तियां ने, पशुओं नूं भी पंछियों नूं भी खंभ भी दिते ने, नेत्र भी दिते ने। वो तो बेचारे उत्थे ही टिक गए, कुछ कर नहीं सकते। तो असीं जिहड़ियां दातां दित्तियां उन्होंने भन्नदे तरोड़दे मरोड़दे हैं। जिवें सवेरे अमृत वेले ज्ञानी सत्कारयोग ज्ञानी मुकंद सिंह जी ने वो शब्द की व्याख्या की, तो एक अलंकार सी बड़ा सुंदर कि बादशाह किस तरह आऊगा। और बड़ा गंभीर शब्द सी, अवस्था का सी। तो मेरा ख्याल है, मैं तो नहीं देखा सुनिया तो या देखने के भरवटे तो मना लग पे है लोग। मेरा ख्याल चिमड़ियां तो नहीं कटाते होने, कोई आश्चर्य गल भी है नहीं वो, क्योंकि जिहा जिहा इन्होंने देखना है वो सिनेमा जाके या घर घर टैलीविजन ने उत्थे गल्लां वेख वेख के जिहड़ा कच्चा दुध हुंदा, कहंदे आम सियाणियां दी गल है, ਉਹਨੂੰ जिस तरह का मर्जी रूप कर दो। कच्चे दुध का तो मतलब छेती ही असर होंदा चीज़ का। इस तरह ही साड़ियाँ जिहड़ियां संतानां ने, बच्चे ने, इन्हों जिस तरह की भी संगत हो जाए बड़ी छेती असर होंदा। सो जे करके असी फिर साड़ियाँ कई शिकायत आउंदियां ने, जी बच्चे ऐ हो गए जी, सिर मूँह मराउण लग पे जी, आ हो गया जी, आ हो गया। कि जे उन्होंने भाई इस तरह का तुसी चाहते हो कि ये नेक बन या अच्छे बन, तो पहला सब तो ये चीज़ करनी वो आप नेक बन, ये चीज़ करनी वो आप नेक बन। पहले सारे तो परिवार दे अपने दे जो सिक्ख्या दाता ने, माता पिता ने, और जिमें जिमें बच्चे नूं सूझ आऊगी उन्होंने बचना नूं, उन्होंने बोली नूं माता ही सिखाती है। माता का ज़्यादा हिस्सा है, क्यों हर वेले वो नाल रहिंदा है। करके जिहा जिहा वो सुभाव जिहड़ा दुध पींदा जाओ वो सुभाव का भी जाऊगा गुण, जिस तरह जो वो गुण अवगुण वो भी जाते, मानसिक असर भी हुंदा है वो भी जाऊगा। तो फिर भाई जिस तरह का वो बोली सकता या होर फिर वेखण दा हुंदा। जे माता वो पहला वेखण के उस तरह का वो पहरावा है या उस तरह की वजह कथा या होर आले दुआले का फिर प्रभाव पऊगा, वो परिवार का पऊगा, सारी चीज़ का खाण पीण दी चीज़ों का पऊगा। तो जे असी अच्छा बनाना चाहते अपने परिवार नूं, वो तो पहला आप उस तरह का अच्छा बनीए। फिर दूजे दर्जे ते संत बने साडा मुंडा, चंगा नेक बने। किवें बने? फरीद साहब की माता सी, धरौं की माता सी, उन्होंने माता तो सिक्ख्या मिल गई, पिछले कर्म सीगे। ते जे प्रहलाद भगत संत बन गया तो उसका जन्म कित्थे होया भी? उसकी माता साध संगत दे विचों इंदर छड़ गया, ऋषियों मुनियों के विचों दी संगत के नाल हो बन गया। तो सब तो पहला दूसरे दर्जे ते फिर हैगी है जिथे उन्होंने असीं कहने भी बच्चा सियाना हो जाए, विद्या पढ़े, तो वह हैगे मास्टर। तो मास्टर पे भाई जे वो पहला तो विद्या का भी जिहड़ा ढंग है वो उस तरह का होना चाहिए। पहला मास्टर जे वो चंगे वो अपना जीवन बनाने हो जाए, वही उन्होंने प्रभाव पैना, उन्होंने उस तरह करना है। मैं ये गल चली चंगे चंगे गुरमुखां दे बच्चे आओ जी सिर मुँह मनाए जाते हैं, होर चीज़ां मैं वो गल की हो गई ये वो फिर पता लगा भी ये तो जी साड़ी भारत की गड्ड मड्ड लाग उपाधिक कह दो, गंदगी कह दो, झूठ फरेब कह दो, कुसंगत कह दो, औगुण कह दो, वो भरे पे। वो असीं लोभ लालच दे विच, माया दे विच या होर चीज़ है, टैलीविजन है, उस तरह की
श्रृंगार रस है, काम रस है। इते रस शरीर के कैकट नाम निवास, रस रूपा रस काम। रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर, रस मीठा रस नाश। इते रस शरीर के कैकट नाम निवास, नाम दा रस नहीं आउंदा, बाणी अंदर नहीं प्रवेश करूगी। गाओ सच्ची बाणी तो गाओ, गुरु केरी बाणियां सिर बाणी पई है। सिर सारियां तो जिहड़ा श्रोमणी वाहिगुरु परमेश्वर है उसकी बाणी है। जिनको नजर कर्म होवे हिरदे च न समाणी, उन्हां दे हृदय दे विच इसदा निवास हुंदा है। निवास होण दी वरतों दा ये लक्षण हुंदा कि उहा जिहा उसे अनुसार उसका जीवन दिसण लग पैंदा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ, ਟੇਪਾਂ ਭਰ ਲਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਜੂਗੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੋ। जिनको नदर कर्म हो वह हृदय च न समाने। फिर ये मुकाबले से सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। इत्थे भी रौला कदे मन संदेह हो जाता, पर अगली पंक्तियां भी स्पष्ट, चित जिनका हिर लिया माया बोलन पै रवाणी। जिन्हां दा चित जिहड़ा है वो चुरा लिया है, आपने चुरा लिया। कहने मेरा तो चित चुराया गया, भी खत्म है सब, अगले दे अधीन हो गया, कंट्रोल तो बाहर हो गया। ते माया इन्नी प्रबल पै गई भी वो छेती उन्हां दा जिवें फिर मर्जी उत्थे काम क्रोध खेडी जान। आसरी संतवा तृष्णा या होर चीज़ है, ते नाल बेशक ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਾਸ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਆ, ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिन्हों ने बाणी संग्रह की सारी संकल्प की है, जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन पियो, तिनके दुख कोट दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ये पदत से मत चूका रे मन भेद बभेद न जान पियो। भेद का अर्थ दिना भी हुंदा है, भेद फर्क भी पा देना उस दे विच, किसी चीज़ की दूर हो जाना, कट दे दूर हो जाती, इस करके उसका भेद तो बेभेद उल्ट ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਲਟ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ न जान प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास।
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਤਾਂ ਥਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾਹਮ ਜਨਮ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਸਾਧੂ ਸੇ ਮਨ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਨ ਕੋ ਬੋਲੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਣ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ, ਸਾਜਨ ਆਏ ਉੱਠੇ ਕਰਮਾ ਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕੂੜੀ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜਿਬ ਜਤ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਖੇਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਆਸਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ।
कि साध संगत भाई गुरु पदवी फिर वो परमेश्वर नहीं वही चीज़ है तो वो अगे उपदेश देने हैं। जे अपने कोई चलाऊगा या होर पंथ इस तरह के वाहिगुरु परमेश्वर की जी ये गुरबाणी स्वरूप है ये गुरु स्वरूप है। यही अज्ञान को कटती है उस शिक्षा जो मनन च लाएगा सतगुरां के उपदेश में विसालेगा उससे सारे बेड़े पार हो जाएंगे। फिर भी इस रूप के विच रहना से गुरबाणी ने नाम पानी जिस वेले बस गई तो परमेश्वर सारे साधुओं का साधु है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिला ਦਿੰਦੀ है ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ नहीं है। इस करके उत्थे ਉਹਨੂੰ है तो सारी व्यापक है एक उपाधि करके जिन्ना चिर है ਉਹਨੂੰ संत कह देंगे है या भी वो रब दे नाल है मिलिया है तो जदों कला ही इको ही एक है तो फिर किहदे नाल मिलना किहड़ा है तो दूसरा किहड़ा होना है। पर वो जिन्ना चिर शरीर है प्रारब्ध है उन्ना चिर नहीं। सो ये महापुरुषों का या वो संत रही संत हो वो सतगुरु महाराज जी का जोड़ा वाक आया है वो पाठ रखाया सी ਉਹਦਾ भोग पिया है। कईयां दे मनां विच जिहड़े इत्थे रहण वाले है नगर निवासी या बाहर गुरमुख रहंदे ने उन्हां नूं तां इस चीज़ का चंगा निर्णय हो चुका है। गल अगे इत्थे पाठ अखंड पाठ दे ही रहिंदे सी वारी भी नहीं सी आउंदी 2-2 3-3 महीनों के लिखे हुंदे सी। पाठ की गल कोई अखंड पाठ नहीं दिसदा इत्थे। बहुत ही रौनक मेला भी नहीं दिसदा सधारण जाई दिसदे ने वो भी मेरे वर्गे पूरे नहीं। ये भाई जिन्हों का यह जोड़ मेला मना रहे हैं और गुरमुखा ने जिन्होंने संगत की है उन्होंने वो महापुरुष बन गए संत बन गए ज्ञानी बन गए। ज्ञानी तो भी ज्ञान दीयां गल्लां करते सी अर्थ करते सी तां ज्ञानी कहण लग पे। कोई संत जिहड़े सी वो उन्हां दा चित्त शांत हो गया विकारां वालों तां संत कहण लग पे। ते महापुरुष आम लोगों को पुरख कहते हैं उन्होंने तो होर भी महा थोड़े जे होर उत्तम हो गए चंगे हो गए। वो फिर विचार ये चलती चलती भी भाई अजकल बहुत प्रवृत्ति हो गई है। वो गल विच रह गई सी भी स्कूलों के जिहड़े मास्टर ने उन्हां दा जीवन जिस तरह का उन्हां दी शिक्षा जो बच्चों ते उन्हां ते होनी अगे होनी ते दूसरी ये तो राज प्रबंध के सिलसिला चले गए ना टैलीविजन का रेडियो का भी वो कहते इस तरह की गल्लां क्या करो तुसीं है दूजी गल नहीं करनी है आ देखा करो वो तो उन्हां दा काम है तो राज प्रबंध की शाख इधर भी सिक्ख्या नाल जुड़ती है पर वो आप भी कर सकते हैं। जे उन्होंने कहो मैं भी 2 घंटे गुरमुख नाल विचार भी किस तरह सुधार हो सकता है। विद्या मंत्री अजकल अपना वो भी चंगा है उन्होंने भी योगदान लाया है ये चीज़ हट जाए मेरे सिटे ते बुद्धि अपनी भी नहीं ये नहीं सुधार हो सकता। मैं चलो जी सरकारी स्कूल तो है आप अपने ईसाइयों के स्कूल है कॉलेज है होर भी है सरकार का तो भी साडा सैकुलरिज्म है किसी धर्म नहीं दखल देना जिमें कोई मर्जी या होर चीज़ करी करी जान जो खालसे है वो अपना करी जाते ईसाई अपना मत जड़ाई जाते हैं इन्हों के अंकुश नहीं दूसरे का थोड़ा जहा गौरमेंट का होंगे है जोड़े स्कूल हुण प्राइवेट कोई गुरुद्वारियां दे विच जां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के नाम से चलाता या उत्थे या यह चीज़ है कि उत्थे ही शुरू कर दो
ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ। ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਚਰਨਹੀਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਸੁਧਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਭੋ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੰਭੋ। ਆਪਣੀ ਭਾਗੀ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿਮਟੇ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇਗਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ
किसी का गल घोट दिता वो माड़ा है कि वो फांसी है, उतार दूगा, या जिन्हों नाम दसणगे उतार दूगा। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी स्वरूप हैं, तुनात्मक रूप हैं, अक्षर स्वरूप हैं। और जेडे भाई फिर उन्होंने वाहिगुरू के हुक्मां नूं मनण वाले ने वो सेवा महाराज ने की। इहो जे गुण होण वो अगे वो साध समझ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਧ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੋ नहीं और केवल जिन्होंने यही वासना भी असी तो सानू संगतां च माया आवे या ढिड बजाई तो होर कवीशरी गाई तो होर जा वड्याई हुई तो होर जी मैं हवे सातों तो नहीं थोड़ा प्रचार चलिया जाता। सानू ढिड्डां वालियां नूं ते कवीशरां नूं ना जदों असली लोड़ पई किसी मोर्चे की थानू लावांगे अगे तो असीं होवांगे पिछे। लोड़ ही नहीं पिछे होंदी कि थक के हो कि जानवर सिखाए होंगे ने जाल च उन्होंने फसा देंगे, दूजे आप निकल जाते हैं। इस करके बई उदों की या फिर इत्थे दी जिहड़ी हैगी है करनी इस स्थान की वो कथन दे विच नहीं हो सकती। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ एक कतरा मात्र भी नहीं ਉਹਦੇ बराबर। जिस तरह बाबा खजान सिंह जी की करनी सी, फिर उन्होंने उस चीज़ में जर के रखना प्रगट ही ना हो गए। फिर इस तरह ही भाई अगे संत बाबे सुंदर सिंह जी कि ऐसी गल नहीं ना अपने मुँह तो निकले ना किसी दूसरे मिल के वड्याई या होर चीज़। जो भी जोड़े गुरु महाराज के सूल ने उन्होंने अनुसार सिक्खी के विचार हो ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ठीक है संप्रदा तो सारी बजती जब गुरमुख आ गए उन्होंने संगी या होर साढ़े वालों खुद भी आओ देख लो बोलो। तो जे केवल कहना ही है तो फिर जाओ समझ दे विच फिर भाई पाठी या होर चीज़ है वो बहुत 2-3 साल ही घोल होंदा रहा इस पिंड विच, दोहां पिंडां च। हाले जिहड़े महापुरुषां ने मैनूं पता इन्हां दा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा दा भी वो पाठ किवें कराउंदे सी, खंड पाठ या दूसरे किवें कराउंदे सी। भी पहला सिंह दी रहत बैठ ठीक तैयार बरत्यार हो, नितनेमी हो, कुरता तो बचा हो, संयम वाला हो। आप उन्होंने इतने पाठ कराए 100 तो वध भी कई बार पाठ कराए। उन्होंने महाराज की कृपा सी, परमेश्वर वालों दास सी, सिंह सी, उदों बिल्कुल अख नहीं सी चमकन देंदे किसी पासे। खान पीन दी चीज़ां भी फिर मैं भी बाबे खजान सुना दी। फिर इत्थों तक हुण तां ये गल्लां बातां सारियां हो गईयां भी जिहड़े पाठी ने अपने विच भी लईए जे अस्थानां ते भी लईए, जे आगू ही ना उन्हां ते चलूगा ते दूजिआं ने तां की चलना है। खाण पीण दे पत्तर ते बेअमृती दा जूठा नहीं खाना लो। इसे भी विचार करके वो पाठियां ने होंदी ने भी तुसीं दसो। वो कहंदे जी साडी कोई वाह पेश नहीं है,
सानू तो जंजां ते भी जाना पैंदा, होर सा दुकानां ते भी खाना पैंदा, होर सा तुसीं तो ये गल कहंदे हो भी उत्थे झूठा या होर नहीं खाना, ये झूठ नहीं बोलना, अपने धर्म की किरत करो, बाणी दे नितनेमी होवो। कहंदे नहीं, सानू होर सा पाठ बहुत मिल जाते हैं, इसलिए अमृत छकाउण वाले होर सा मिल जाएंगे। इस करके भाई असीं ने बंद किते, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके उन्होंने पाठियों ने यह सवाल खड़ा कर दिता भी ठीक है गुरमत है, ਜਿਹੜੇ कराउण वाले होण उन्होंने भी धर्म की किरत हो। आ जाओ हम कराउण वाले।